तो इस सीमा में रह के इस रेखा को देखो। समझ में आया कि नहीं? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। A few moments later. सर ये चेयर थोड़ा खराब है ना, पीछे जा रहा है। ओके। I don't know how to do this. अरे डोंट वरी, मैं हूं ना। काय को सामने बोला ना खुद करने को, खुद कर काय को। अभिषेक रेखा रेखा अपने प्यार के सपने सच हुए। क्या हुआ? तो देखा कि नहीं? वेलकम बैक एवरीवन। टुडे we will study about the circles, basic concepts we have studied. Circles approaching questions also we have done some questions. Now area related to circles, that concept also we have done, but we have not done some questions, right? So we will do some questions on area related to circles, that means areas of combinations of plane figures. Do you understand? Combination of what? Combination of circles, segments and sectors, different kind of things. Let us see what happens. Suppose this is a figure you see. I will take some examples and tell you how to find the areas, right? पहला एग्जाम्पल ले लो ऐसे। तो ऐसा कुछ डायग्राम है, ये बहुत इजी है। मान लो इसे स्क्वायर whose side is given, very fine. So it is asking you to find this shaded region area, ठीक है? तो मैं पूछ रहा है कि इस शेडेड रीजन के अंदर जो एरिया है वो निकालो। अच्छा, कैसे करें? सॉरी, वेरी एविडेंटली यू कैन सी दैट दिस हेमिस्फीयर्स ड्रॉन ऑन द टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर हैव द रेडियस इज इक्वल टू half of the side of the square. So if you know the radii of these two hemispheres, you can very well subtract from the whole square. You can subtract two hemispheres or a single. If these two semicircles are put together, it becomes a single circle. So you can subtract a single circle of radius a by 2 or two hemispheres. Hemispheres I am saying, semicircles of radius a by 2. Subtract it from the whole square. Whatever you are left with is the answer. So area related to circles questions, maximum questions, good decent questions are done not by finding out the area directly. See, this region area you cannot find out directly. Why you cannot? Because you don't know integration, you don't know change in variables, you cannot do that. So how to do that in class 10 is by finding the areas which you can find out and subtracting it from the total. So this is the method. So I can find this semicircle and I can subtract it, the sum of these two from the total, and whatever is left is my region I need to find out, right? So this is the procedure, remember in mind, you will follow always in this chapter. In maximum good questions you will follow this. Coming on to the second type of example. यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ऐसा स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर में अंदर एक रीजन ऐसा है, राइट? इट इज आस्किंग यू
to find what? It's asking you to find the area of the shaded region, right? लेकिन दिया क्या है? It is given the side of the square, let this be 14, let this be also 14. Suppose it's a square of 14 and this is placed at the center. All of these are semicircles, right? और ऐसा एक शेप बना है और बोला है बाकी का एरिया कितना है. कैसे करें? एक और चीज़ दिया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द sides of edges of the square is given. Suppose let it be 4 like 3, let it be 3 cm. Fine, this is 3 cm, this is also 3 cm, this is also 3 cm. So all of these distances are 3 cm each. Fine, very fine. अभी पूछा है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालो, राइट? या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस अनशेडेड रीजन. से एक ही क्वेश्चन है, ये निकाल सकते हो तो वो भी निकाल सकते हो. अब पूरा स्क्वायर का एरिया तो पता है लेकिन ये सब नहीं पता. लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये जो सेमी सर्कल्स है सारे आइडेंटिकल हैं और इसका रेडाई, इसका भी रेडियस है, इसका भी रेडियस है और इसका भी रेडियस है, और बीच में जो रीजन मिल रहा है इस सारे सेमी सर्कल्स का एंड पॉइंट्स को जॉइन करके वो एक स्क्वायर है. ये सो नो. तो इस स्क्वायर के थ्रू अगर मैंने इस लाइन को पास कर दिया और इफ आई एज्यूम द रेडाई ऑफ ऑल ऑफ दिस सेमी सर्कल रीजन इज आर, तो ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब ये भी आर है, ये भी आर है, तो सब आर है, ये भी आर है, राइट? आर. So this is R and how much is this? This is 2R. If this is 2R, this is also 2R because parallel lines. So ये R है, ये 2R है और ये R है, मतलब टोटल कितना है? 4R. Very good. If the total is 4R, I can say 4R is same as 14 minus ऊपर से 3 नीचे से 3, 14 minus 6 which is 8. मतलब R is how much? 2. So I found out the radii of all of these semicircles, and 4 semicircles together make 2 circles. So I can put 2 pi r square, where I can put the value of r as 2, as I found out 2 cm. 2 pi r square. This is the area of all of these semicircular regions, and the square also is there. So the square का region का कितना है? Side square. Side कितना है? 2r. 2r मतलब 2 into 2 which is 4 plus 4 square. तो ये जो रीजन आया, this is the area of the unshaded part, right? So how to find the shaded part? I will subtract from the bigger square. मतलब 14 square which is the bigger square minus bracket में 2 pi r square, got it, plus 4 का स्क्वायर. ये 4 का स्क्वायर क्या है? ये बीच वाले स्क्वायर का एरिया. और ये जो 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? ये 4 हैवी सेमी सर्कल्स को मिला के जो 2 सर्कल मिला वैसे. अगर तुम्हें ऐसा पसंद नहीं है तो तुम ऐसे लिख सकते हो 4 into पाई आर स्क्वायर बाई 2 विच इज सेम एज 2 सर्कल्स. सो दिस इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन डू लाइक दिस. इसमें भी हमने क्या किया? वी फाउंड आउट द रीजन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द रीजन विच इज रिक्वायर्ड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना. अभी एक तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है? मान लो क्वेश्चन ऐसा है, दिस इज अ स्क्वायर, इसका साइड है ए, और यूजिंग द एजेस ऑफ द स्क्वायर 4 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन. ओके, 4 of them. Fine. ठीक है? तो ऐसा फूल जैसा चीज़ मुझे बीच में मिला और पूछा है कि इसका एरिया निकालो. ठीक है? अब ऐसा रीजन सॉरी ऐसा रीजन का एरिया निकालना ये तो मुश्किल है हमारे लिए क्लास 10 के नॉलेज में, क्योंकि हमें ये वेरिएबल है ना, यहाँ से बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, यूनिफॉर्म थोड़ी है, नहीं है, और ये सेमी सर्कुलर भी नहीं है ये रीजन. तो कैसे करें? सेम मेथड, वी विल फाउंड आउट द एरियाज नॉट रिक्वायर्ड
इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया विच इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? आप समझ रहे हो? वेरी नाइस। सो ये चारों रीजन हमें निकालना है। तो कैसे करें? नॉट रिक्वायर्ड निकालेंगे। तो पहले देखते हैं ये नॉट रिक्वायर्ड रीजन कितना रीजन है? 1 2 3 और 4। नॉट रिक्वायर्ड जो रीजन्स हैं कितने हैं? 4। और चारों एक जैसा ही है। देखो कोई ऐसा है, कोई ऊपर से ऐसा है ना, सब ऐसा ही है। तो ये जो रीजन्स हैं ऐसे 1 2 3 4, ये चारों आइडेंटिकल हैं, ये तो मानते हो। लेकिन ये रीजन आया कैसे है, ये मेरी बात है कि आया है ऐसे। देखो पहले हम स्क्वायर में सबसे पहले एक सेमी सर्कल करते हैं, एक एज को लेके कर लिए। तो ये जो रीजन आया ये तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो अभी एक दूसरा सेमी सर्कल करते हैं। अब देखो, अब देख रहे हो ये रीजन जो ऊपर और नीचे बचा, देख रहे हो? ये दोनों रीजन नहीं है 4 + 2 है कि नहीं? अनवांटेड रीजन्स है ना, यहाँ पे वांटेड है क्योंकि हम उसको ढूंढ रहे हैं अभी। सो ये दोनों रीजन्स जो हैं वो हमें मिल गए। वो कैसे मिले? उस स्क्वायर के एरिया से 2 सेमी सर्कल विथ रेडियाई हाउ मच? a/2, राइट। सो या फिर एक ही सर्कल विथ रेडियस a/2, तो पाई a/2 का स्क्वायर माइनस किया तो मुझे मिल गया क्या है? ये रीजन 2 प्लस रीजन 4, दिस रीजन प्लस दिस रीजन, दोनों का सम मुझे मिल गया कि ये दोनों एरिया का इतना है। अब ध्यान से देखो तो रीजन 1 और 3 जो बाकी दोनों सेमी सर्कल करने से मिलेगा, ये वाले, ये भी तो आइडेंटिकल हैं विथ 2 और 4 है कि नहीं? मतलब इस एरिया को लेके मैं इंटू 2 कर दूं तो मुझे 1 2 3 4 सारे मिल जाएंगे कि नहीं? समझ रहे हो? तो मैं इस रीजन को लेता हूँ और इंटू 2 कर देता हूँ क्योंकि 1 + 3 जो है 2 + 4 भी वही है। तो इसको इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a² माइनस पाई a/2 का स्क्वायर होल ऑफ ट्वाइस, राइट। दिस इज द रीजन आई डोंट नीड, ओके, द अनवांटेड रीजन्स। अब अनवांटेड रीजन्स मिलने के बाद वांटेड रीजन्स तो तुम्हें पता है, टोटल एरिया से वी कैन सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड द वांटेड रीजन्स। समझ में आया कि नहीं? सो क्या करेंगे? टोटल रीजन कितना है? a × a²। अब टोटल रीजन से पूरे स्क्वायर से मैंने माइनस कर दिया 1 2 3 4 रीजन्स, तो जो बचेगा वही आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई a²/4, 2 पाई a²/4 हो जाएगा। और ये a² - 2a² मतलब -a²। समझ रहे हो? मतलब 2 सेमी सर्कुलर रीजन पाई a/2 का स्क्वायर, 2 सर्कुलर रीजन विथ रेडियस a/2 से एक स्क्वायर माइनस कर दो तो जो बचेगा यही है। थोड़ा इंटरेस्टिंग मिलता है लेकिन उससे कुछ समझना हमारे पास की बात नहीं है। देखो ना खुद, ये 2 पाई a/2 का स्क्वायर है, नहीं है? 2 पाई a/2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 सर्कल ऐसे a/2 रेडियस के, वो 2 सर्कल का एरिया ऐड करो, उससे एक स्क्वायर निकाल दो a वाला, तो जो बचेगा वही आंसर है इसका। लेकिन कुछ रिलेशन है नहीं, तुम ऐसे सोच सकते हो फॉर योर इंटरेस्ट, ओके। सो इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। लेट अस गो ऑन टू द अनदर एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड लेवल में ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर कोई मुश्किल है तो कमेंट सेक्शन में नीचे वो क्वेश्चन बताना, आई विल हेल्प यू सॉल्विंग इट। सो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज गिवन इक्विलेटरल, और यहाँ पे इसको सेंटर लेके एक सर्कल बनाया है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को, एक वर्टेक्स को सेंटर लेके यू हैव मेड ए सर्कल एंड इट इज आस्किंग यू टू फाइंड द रीजन दिस वन, ऐसा। या फिर ये भूल जाओ, ऐसा पूछ सकता है ये, ठीक है। तो ध्यान की बात यह है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा?
60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर तुम निकाल सकते हो एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ये सुनो, यस सर। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर तुम निकाल सकते हो। निकाल दिया। अच्छा, अब मेजर सेक्टर भी निकाल सकते हो। ये माइनर सेक्टर है, अगर मेजर सेक्टर पूछे तो 360 से 60 माइनस कर दो, 300 बचा। रिफ्लेक्स एंगल 300, सो 300 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे करोगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ सकता है, बड़ा वाला पार्ट का, तो उसका भी एरिया निकाल सकते हो, इसका भी एरिया निकाल सकते हो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया इंक्लूड किया है तो वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो वो साइड तुम्हें दिया होगा और ये भी दिया होगा कि ये रेडियस कितना है या फिर इसका साइड कितना है, तो वो सब दिया होगा। तो इस हिसाब से तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, माइनर सेक्टर का निकाल सकते हो, मेजर सेक्टर का निकाल सकते हो, पूरे सर्कल का निकाल सकते हो। लेकिन जो गलती बच्चे यहाँ पे करते हैं वो ध्यान रखो कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है, ठीक है, दिया है और क्या बोला है कि फाइंड द एरिया, ये ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे, ये एरिया एक ही बार पूछा है। व्हाट स्टूडेंट्स डू नॉर्मली व्हाइल डूइंग ए मिस्टेक, दे फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, पता नहीं कैसे, अगर साइड दिया है तो साइड से, अगर कोई अलग तरीका दिया है तो उससे। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, उसके साथ ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ऐड कर देते हैं। लेकिन गलती ये हो जाता है कि ये जो पाई वाला रीजन तुमने देखा, पिज़्ज़ा वाला रीजन, ये रीजन तुमने एक बार ले लिया यहाँ पे और दूसरी बार ले लिया ट्रायंगल में। ठीक है, ऐसा मत करना। जो रीजन देता है कभी कभी व्हाइल फाइंडिंग आउट द आंसर ओवरलैपिंग हो जाता है, मतलब इसमें भी इंक्लूड हो गया और उसमें भी इंक्लूड हो गया। अंडरस्टूड? सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू डू दैट, योर आंसर विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज यू हैव इंक्लूडेड द एरिया इन बोथ द साइड्स। वो नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि ये ट्रायंगल का नहीं दिया, ठीक है, बस पूछा है फाइंड द एरिया ऐसे दिया और नीचे दिया है ट्रायंगल का। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे बच्चे, पूरे सर्कल का निकाल देंगे या फिर मेजर सेक्टर का निकालेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, पूरे सर्कल का निकाल देते हैं, उससे ये सेक्टर माइनस कर देते हैं, फिर ट्रायंगल निकालते हैं, ट्रायंगल से फिर से ये सेक्टर माइनस कर देते हैं। मतलब ये सेक्टर कितने बार माइनस हो गया? 2 बार। लेकिन एक ही बार नहीं है ना, 2 बार कैसे गायब होता है? मिस्टर इंडिया भी एक ही बार गायब होता है, 2 बार गायब होता है क्या? अरे 2 बार गायब कुछ होता है क्या? होता है? नहीं होता ना। तो एक ही बार ये एरिया गायब हुआ, दूसरी बार क्या गायब है? मतलब तुम क्या करे, इसको निकाल दिए एरिया ऑफ द सर्कल, वहाँ से सेक्टर माइनस कर दिए, तुम्हारा काम हो चुका है। लेकिन जब ट्रायंगल करने बैठे तो तब देखे भाई ट्रायंगल में भी तो ये नहीं है, तो ट्रायंगल से भी इसको माइनस करो। तो ये जो रीजन है इसको बहुत इंपॉर्टेंस मिल गया अभी। एक बार यहाँ से माइनस हुआ, एक बार वहाँ से माइनस हुआ, 2 बार माइनस हुआ, गायब प्लस गायब। समझ में आ रहा है? यस। अब तुमने अंग्रेजी में बोल दिया, गायब का मतलब भी वही था। तो अभी बात क्या है कि ये जो है चीज़, ये 2 बार हो गया, मतलब गलती हो गई, क्योंकि एक ही बार नहीं है, 2 बार माइनस करोगे तो गलत है। हमें कितना चाहिए? बस ये ऊपर वाला चाहिए। डायरेक्टली मेजर सेक्टर का फॉर्मूला डाल के ये रिफ्लेक्स एंगल निकाल के थीटा बाई 360 करके निकाल सकते हो, और उसके साथ ट्रायंगल निकाल सकते हो, ट्रायंगल से ये छोटा सा सेक्टर माइनस कर सकते हो एक बार। ठीक है, या फिर अगर ऐसा करके तुमने 2 बार माइनस किया है तो एक बार खुद से ऐड भी कर सकते हो। 2 बार गायब हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार प्रकट हो जाओ तो एक बार तुम दे सकते हो। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ जब सॉल्व करते हो। ठीक है, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तुम ऐसे सारे क्वेश्चंस करना, अच्छे से करना। और आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ़ इट हेल्प्स यू, पुट अ लाइक एंड
comment. Thanks all of you. Thank you.